Hi Ankur, how are you? Hi Gaurav, I'm fine, thank you. Hope you're doing good too. Okay, Gaurav, though I have gone through your resume, I would still like to know something from you. Thank you, Gaurav, for your time. Our team will get back to you soon. And that get back to you never comes. बुरा लगता है भाई. This is common and happens to everyone. So chillax. पूरी वीडियो देखने के बाद इंटरव्यू का डर लगभग खत्म हो जाएगा. That I promise. Okay. Because in this video, I'm going to share top 3 important things that I have experienced and found in my research. We will not only discuss why people get rejected in interviews, but will also discuss on how to improve the chances of getting selected. इससे पहले एक बात और, आजकल ज्यादातर इंटरव्यूज वीडियो कॉल पर हो रहे हैं, means people are avoiding physical interviews. So if that is possible, please try interviews to happen on video call. इसका फायदा मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, तो प्लीज डोंट लीव वीडियो टिल एंड. Let's discuss reason number 1. Your profile resume is not properly prepared, so the interviewer is not taking you seriously. इसके लिए यदि आपने हमारा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इस वीडियो के बाद तुरंत देख लीजिए आई बटन पे, या फिर लास्ट में माय सजेशन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा. इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एक अच्छा इफेक्टिव रेज्यूम बना पाएंगे. रीजन नंबर 2, अप्लाइंग इन इररिलेवेंट जॉब्स. मतलब ऐसे जॉब्स में अप्लाई करना जिसके लिए आपके पास ना तो इनफ स्किल्स हैं और ना आप उन स्किल्स को जल्दी ही सीख पाएंगे. अब चूंकि आपकी स्किल्स जॉब रोल से मैच नहीं करती, आप रिजेक्ट ही हो जाएंगे. सो व्हाट यू नीड टू डू, check the job descriptions, especially skills, qualifications, courses, certifications and training, and if the requirement is matching with your skills, please apply. अब बात करते हैं हम तीसरे और सबसे important reason की, not preparing for questions, informations asked in the interview. भाई बिना प्रिपरेशन के तो आप स्कूल टेस्ट में भी फेल हो जाओगे, फिर तो ये इंटरव्यू है जहां इंटरव्यूअर के पास आप जैसे और आपसे बेहतर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं. आप क्या प्रिपेयर करें, इंटरव्यूअर जनरली क्या पूछता है, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल. तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. अब इसमें नया क्या है, ये तो मैं हजारों बार इंटरव्यू में बता चुका हूँ. Sir, I am sitting in front of yourself. Myself, Rakesh Mohanty, and I am technology mad. तो इंटरव्यूअर क्या चाहता है इस क्वेश्चन के जवाब में, तो सुनिए. इंटरव्यूअर चाहता है कि आप अपने जॉब रोल को बताने के साथ साथ अपनी क्रिटिकल स्किल्स, कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऐड करें और कुछ ऐसा बताएं that you have and you can help their business or department to grow. जैसे आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं, My name is Sunil and I have been working for more than 12 years, currently working with so and so company as in so and so position. My core job in my current role is to initiate and drive projects, deploy business training and develop business presentations. Being adaptable and learning new things are my core competencies that always help me to align and achieve business goals. In my current organization, I had successfully completed a project where I have helped the organization to make an additional profit of 2%. And now a little about me. I belong to and currently residing at this place. I live with my family. A few of my hobbies are to learn about technologies helping to grow the working world and creating educational content for working professionals. इस तरीके से आप tell me something about yourself को describe कर सकते हैं. आप इसे अपने हिसाब से alter कर सकते हैं. This is only the basic or the outline of the answer for this question. The next question, why do you want to leave your current company? ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको बहुत सोच समझकर जवाब देना चाहिए. बेसिकली इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आप जिस रीजन से करंट कंपनी छोड़ रहे हैं, कल के लिए उसी रीजन से उनकी कंपनी भी छोड़ सकते हैं. आई वुड सजेस्ट टू बी ट्रांसपेरेंट एंड शेयर जेन्युइन रीजंस. आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि XYZ इज अ गुड कंपनी टू वर्क
with and I am enjoying my work here. However, recently I am finding limited scope to explore my skills and knowledge that I have learned, and I wanted to get the platform to explore and prove my abilities. Next question. Very important. Why do you want to join our company? Tell something good that you know about company you are applying for. और कुछ ऐसी बातें इंक्लूड करें जिससे इंटरव्यूअर को ये लगे कि आप कुछ नया सीखने या एक्सप्लोर करने के लिए उनकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं, आई हैव रिसेंटली अपग्रेडेड माई एनालिटिकल स्किल्स एंड वांट टू एक्सप्लोर माई नॉलेज इन दिस जॉब टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, ये सवाल मुझे अब तक किसी ने नहीं पूछा और मुझे इस सवाल का कोई रेलेवेंस भी नहीं लगता। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? स्ट्रेंथ तक तो बात फिर भी समझ में आती है, बट अपनी एक्चुअल वीकनेस कौन ही बताता है, और यदि बताता भी है तो वो बताता है जिसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता। चूंकि लोग कहते हैं इसलिए आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। स्ट्रेंथ में आप अपनी कॉम्पिटेंसीज जैसे क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी जैसे क्रिटिकल पार्ट ऐड कर सकते हैं। वीकनेस में यू कैन इंक्लूड दैट टू डिटेल ओरिएंटेड, परफेक्शनिज्म, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब जो भी हमने डिस्कस किया है, यदि इसको आपने अच्छे से अप्लाई किया है तो क्वेश्चन आता है, सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? अब यहाँ पर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी जॉब रोल और स्किल्स की डिमांड क्या है। इसके लिए अगेन हमारा लास्ट वीडियो देख लीजिए टू अंडरस्टैंड हाउ टू चेक द डिमांड ऑफ योर जॉब और उसके हिसाब से आप कितनी सैलरी निगोशिएट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग एक रेंज बताएं, और इससे भी बेटर ये होता है कि यदि आप करंट सैलरी का कुछ परसेंट इंक्रीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि हो सके तो ये भी पता कर लीजिए कि सामने वाली कंपनी आपको उस जॉब रोल के लिए मैक्सिमम कितना पे कर सकती है। नाउ वन थिंग दैट ऑलवेज हेल्प मी एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू एज वेल, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, प्रिपेयर एंड ऑल दैट मटेरियल इन आइदर सॉफ्ट और हार्ड कॉपी। अब जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आपको ट्राई करना है कि इंटरव्यू वीडियो कॉल पे हो, तो आपको यहाँ पर यह फायदा हो जाएगा कि आप उन सारे मटेरियल को जो आपने सॉफ्ट फॉर्म में जैसे प्रेजेंटेशंस रखे हों, कंटेंट्स रखे हों, या फिर आपने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करी हो, वो सारी यदि वीडियो कॉल पे होते हैं तो आप उसे लाइव प्रेजेंट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे इंटरव्यूअर को जो आप बता रहे होते हैं वो सब ज्ञान होता है। और यदि आप उसे प्रैक्टिकली दिखा पाते हैं तो इससे उसका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। वो अश्योर हो जाता है कि आप जो कह रहे हैं वो एक्चुअली में आप करते हैं। और इंटरव्यू खत्म होने से पहले इंटरव्यूअर आपसे ये जरूर पूछेगा कि एनीथिंग दैट यू वांट टू नो, तो वहां पर कुछ नहीं बोलकर इंटरव्यू खत्म मत कर देना, या फिर मुझे कॉल बैक कब तक आ जाएगा, ऐसे गैर जरूरी सवाल पूछकर अपनी बेइज्जती मत करवा लेना। एक दो अच्छे सवाल पूछकर अच्छी इंप्रेशन बना लो, जैसे व्हाट इज द एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट यू would want to work, बस फिर क्या, जॉब में आपका सिलेक्शन पक्का है। इतनी खुशी